A very fresh and beautiful morning to all my lovely students. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class, students, we completed chapter number 1 from your grammar textbook, that is Collins English Grammar and Composition, right? So I hope कि आपने वो chapter के related जो exercise है, I have already sent you the PDF. You might have completed it, right? I would be sharing you the worksheet in next 2-3 days related to chapter number 1 and chapter number 2 both. Okay. So today, students, we are going to start with chapter number 2, that is common, proper and abstract noun. As we studied before, हमने जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा, right, nouns, और वो सिर्फ रिविजन टॉपिक था because we have already studied noun before, right? So I told you at that time कि nouns जो होते हैं उसके अलग अलग कैटेगरीज होती है. The nouns are divided into different kinds. उसमें से 3 है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, that is common, proper and abstract noun. उसके अलावा भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, जैसे कि मटीरियल नाउन है, concrete noun, collective noun, possessive noun, right? There are many different nouns, countable nouns, uncountable nouns. So there are different categories of nouns. In this chapter number 2, we are going to study 3 types: common, proper and abstract. Okay. Now I know कि आपको एक रफ आइडिया होगा, राइट? आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही इस बारे में कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, राइट? नॉर्मली नाउन्स का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, जो हमने कल पढ़ा था, राइट? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. दैट मीन्स whatever thing, place, animal, person, feeling, idea, whatever we are talking about, it has a name. Whether it could be a specific name या फिर जनरल नेम. जनरल या कॉमन नेम जो होता है, राइट? अभी जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं बॉयज़, सो ये बॉयज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जनरल के लिए. जनरली बॉयज़ कुड बी एनी ऑफ देम, राइट? बट व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक बॉय, हम किसी एक स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात करना चाहते हैं, देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू गिव अ स्पेसिफिक नेम, राइट? जैसे कि इफ आई से राहुल, सो राहुल इज़ अ स्पेसिफिक नेम, राइट? लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉय लिखती हूँ तो वो एक जनरल नेम हो गया. इट इज़ अ जनरल वर्ड, यू कैन से, विच इज़ यूज्ड फॉर एवरीवन. ठीक है? सो जो नाउन्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं सबके लिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. और जब हम किसी को स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड proper noun. Okay, now we are going to study that in detail, but before that we are going to carry out the exercise given over here. Here we need to write down the correct nouns for each type using the words in the box. So let's see the exercise. Okay, the first question is people who help us, right? That means our helpers. So who they could be? Let's see in the box. I can see the first word, that is nurse, so I am going to write it down. Then we have policeman, and the third one over here we can see is teacher, right? So these people can be considered as our helpers, right? They would help us in different ways, right? Now the second one is names of towns and cities. So here we need to write down the name of towns and cities, जिसमें आएगा ऊटी. Then we have Lucknow. I think I made a big round. Let me make a small one. Then we have Lucknow. उसके बाद what do you think, what else do we have? Yes, we have Hyderabad also. So these 3 are the name of cities and towns. Okay, now third one, names of domestic animals. Well, I can understand कि आपको ये exercise
अच्छे से आ रही होगी, राइट, बिकॉज ये तो बहुत ईजी वाली है। नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जिसको हम टेम कर सकते हैं, राइट, जो हमें हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं, राइट, स्ट्रीट एनिमल्स। सो उसमें आएगा डॉग, देन वी हैव गोट एंड काउ, राइट, ये 3 आएंगे। अभी नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सो इन वाइल्ड एनिमल्स वी आर हैविंग बेयर, देन zebra and lion, right? And the last one is name of the flowers. Yes, flowers के name, lily, lotus, rose and marigold. So we have 4 flower names over here. So here you can see कि हमने ये जो क्वेश्चन है, राइट, जैसे कि पीपल, सो पीपल इज यूज्ड फॉर एवरीबडी, राइट, जितने भी हेल्पर्स हैं उन सबको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, हेल्पर्स की कैटेगरी में, जो हमको हेल्प करते हैं, सब लोग ही है, पीपल ही है ना। उसमें कौन कौन आया, नर्स, टीचर, पुलिसमैन, राइट। टाउन्स एंड सिटीज़, देर आर मैनी टाउन्स एंड सिटीज़, लेकिन हमने उनको स्पेसिफिक नेम दिया, जैसे कि हैदराबाद, ऊटी एंड लखनऊ, राइट। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अवर प्रॉपर नाउन, ओके, क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ जो है वो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारी टाउन्स और बहुत सारी सिटीज़ है, लेकिन जब हम उनको स्पेसिफिक नाम देते हैं देन दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ बोथ, ओके। सो फर्स्ट विल सी द sentences given over here. Piyali is a teacher. Mumbai is the largest city in India and Burj Khalifa is a very tall building. And my pet cat Doris is 2 years old. Right? So यहाँ पे आप अगर पहला सेंटेंस देखते हो स्टूडेंट्स, पियाली इज ए टीचर, राइट। सो पियाली और टीचर जो है वो दोनों एक ही पर्सन है, राइट, लेकिन पियाली एक स्पेसिफिक नाम है एक लेडी का, है ना, और टीचर जो है वो हम कॉमन किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोई भी टीचर है, मेल या फीमेल जो भी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक जनरल वर्ड यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं टीचर। टीचर कुड बी एनी वन, राइट, इट कुड बी अ मेल और इट कुड बी अ फीमेल, but if we give a specific name to that teacher then that would be the proper noun। और यहाँ पे टीचर जो है वो हमने जनरल यूज़ किया हुआ है, जनरल पर्सन, मतलब यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल, राइट, तो उसके लिए हम टीचर यूज़ करेंगे। लेट्स सी सेकेंड वन, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। Now here students, Mumbai is the largest city in India. If you see over here, Mumbai is a specific name of the city, है ना, सिटी का एक स्पेसिफिक नेम है, किसी और सिटी का नाम मुंबई नहीं है। फिर है सिटी जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, देर आर सो मैनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, राइट, देर आर मैनी सिटीज़ इन द इंडिया। सो सिटी इज़ समथिंग विच वी यूज़ इन जनरल। और वापस इंडिया जो है वो एक कंट्री का नाम है, कंट्रीज़ तो बहुत सारी होती है, राइट, लेकिन इंडिया जो है वो स्पेसिफिक कंट्री का नाम दिया हुआ है। सो यहाँ पे सिटी जो है वो सिर्फ हमारा कॉमन नाउन है और मुंबई और इंडिया जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है, ओके। बुर्ज खलीफा इज़ ए वेरी टॉल बिल्डिंग। सो बुर्ज खलीफा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बिल्डिंग, राइट। बुर्ज खलीफा एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है जो बहुत लंबी है, इट इज़ वेरी टॉल, लेकिन बिल्डिंग्स तो कोई भी हो सकती है ना। वी डोंट, व्हेन वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड बिल्डिंग देन इट इज़ यूज्ड इन जनरल, इन कॉमन फॉर ऑल द बिल्डिंग्स, लेकिन उस बिल्डिंग को जब हमने स्पेसिफिक नाम दिया बुर्ज खलीफा, सो बुर्ज खलीफा इज़ प्रॉपर नाउन। माई पेट कैट डोरिस इज़ 2 years old, is 2 years old। सो योर कैट का स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है डोरिस, है ना, और कैट जो है वो तो कोई भी कैट हो सकती है,
तो कैट जो है वो हमारा कॉमन नाउन है और डोरिस जो है जो उसको नाम दिया गया है, राइट, दैट इज अवर प्रॉपर नाउन. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट, देन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग इन जनरल, ठीक है, हम जब जनरली बात करते हैं किसी के भी लिए भी बात कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम जनरली बात करते हैं अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, देन इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. सो हियर इन दीज सेंटेंसेस teacher, city, building and cat are common nouns and they are the names of people, place, thing and animals, right. The teacher comes under the category of person. उसके बाद city जो है वो है place, right. फिर है thing, वो building में आ जाएगा, sorry, and cat, that is our animal. So when we are talking about these nouns which are used in common, है ना, जनरली हम यूज़ करते हैं सबके लिए ये वाले वर्ड्स, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल द पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स दैट आर ऑफ सेम काइंड, राइट. सेम काइंड मतलब एक जैसे ही जो सारे होते हैं उनको हम एक ही कैटेगरी में डालते हैं, राइट. जैसे बॉयज़ है उसमें बहुत सारे बॉयज़ ही है ना. फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स ही है सारी. लेकिन जब हमें किसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात करनी है देन हमें उसका नाम होना चाहिए हमारे पास. जैसे कि यहाँ पे है पियाली हु इज़ अ टीचर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सिटी देन इट्स अ मुंबई ओवर हियर. उसके बाद इंडिया जो है वो स्टेट है, सॉरी कंट्री है. Burj Khalifa, that is the name of a building, right. And Doris, that is also a specific name of a cat. So these are particular names of people, place, things and animals, and so they are called proper nouns. Okay, so you need to understand students कि जब हम जनरल बात कर रहे हैं किसी एक कैटेगरी के लिए जिसमें सारे लोग सिमिलर है, राइट. कोई भी कैटेगरी आप ले लो, प्लेस, एनिमल, थिंग. अभी मान लो जैसे हम सिटीज़ बोलते हैं, देर आर मैनी सिटीज़, लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जैसे सूरत, राइट, सो दैट इज़ प्रॉपर नाउन. इफ़ वी से स्कूल, देर आर मैनी, राइट, स्कूल्स तो बहुत सारी है, सो दैट इज़ कॉमन. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मीय ग्रीन स्कूल देन दैट इज़ प्रॉपर नाउन, राइट. वैसे ही सारी चीज़ होती है. रिवर्स, देर आर मैनी, सो दैट इज़ कॉमन. लेकिन जब हम स्पेसिफिक रिवर का नाम देते हैं, नर्मदा रिवर, then that is proper noun. Okay, so you need to understand कि when we are talking in general, ठीक है, तब हम उसको common noun कहते हैं. और जब हम उसको particularly किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको special name देते हैं, and that is called proper noun. Okay, so now we have already understood what common noun is, right. So now let's see the proper noun. Well, the definition of proper noun is given over here. A proper noun is the name given to a specific person, place or animal, right. So जो जनरल नाम होता है उसको कॉमन कहते हैं और जिसको हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं then that is called proper noun. Here there are some examples given over. See, you can see that names of places, river, ocean or sea. अगर हम सिर्फ रिवर्स की बात करते हैं, प्लेसेस या ओशियंस की बात करते हैं देन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी कॉमन. लेकिन जब हम उनको स्पेसिफिक नाम देते हैं जैसे कि प्लेस की जगह पर कैनेडा, रिवर की जगह पर गैंजेस, ओशियंस की जगह पर पैसिफिक ओशियन और सी की जगह पर अरेबियन सी. सो दीज आर स्पेसिफिक नेम्स, राइट. दीज आर स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू दीज जनरल नाउन, राइट. सो दीज आर proper noun and places, river, ocean, seas, those are common noun. Name of organizations, so there are many organizations लेकिन उसको जब हम specific नाम देते हैं जैसे United Nations and Indian Air Force, that is our proper noun. For famous buildings and monuments, buildings as I told you before also, right, buildings बहुत सारी है लेकिन जब हमने उसको specific नाम दिया जैसे कि India Gate, right, then that becomes proper noun. Monuments, there are many, right.
बट अगर हम उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं जैसे ताजमहल या फिर कुतुब मीनार, देन दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन. मंथ्स, लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेजेस आर ऑल्सो मैनी, बट स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे हिंदी, तमिल, फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, राइट, दीज आर प्रॉपर नाउन. मंथ्स, डेज ऑफ द वीक, राइट, मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, जैसे मंडे कह रहे हैं तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन. मंथ्स, जब हम स्पेसिफिक मंथ के बारे में बात कर रहे हैं देन दैट इज आवर प्रॉपर नाउन. टाइटल्स, मिस, मिस्टर एंड मिसेस, दोज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन. फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज, देर आर मैनी फेस्टिवल्स एंड नेशनल हॉलीडेज आर ऑल्सो देयर, राइट. बट जब हम उनको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे एंड क्रिसमस या फिर दिवाली, ईद, राइट, सो दोज आर स्पेसिफिक नेम्स and that comes under the category of proper noun. Books, films, newspapers, yes, these all comes under general noun, common noun. और उनका specific name जो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, oh God, I'm not able to. Yes, Alice in Wonderland, that is the name of a book. The Lion King, it's a movie. And the Hindu, that is newspaper. राइट. सो ये जो स्पेसिफिक नाम है वो है हमारे प्रॉपर नाउन. अभी जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं आपको ये रूल याद रखना है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. ओके, जैसे कि द सन, मून एंड स्काई आर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, बट देन दे आर नॉट रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर. सो ये जो चीज़ें हैं जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स है, राइट, ऐसा कुछ है नहीं दूसरा, है ना, इसीलिए वो कहते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन है. लेकिन ये जो 3 है उसके लिए हमें कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करना है, वरना बाकी सारे प्रॉपर नाउन्स के लिए हमें हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज गिवन ओवर हियर. राइट वेदर द फॉलोइंग आर कॉमन और प्रॉपर नाउन. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट वेदर ये जो नाउन्स दिए हुए हैं वो कॉमन है या प्रॉपर है. फर्स्ट वन इज जैक. जैक इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट, इट्स अ स्पेसिफिक नेम, सो दैट इज प्रॉपर नाउन. राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट लेटर, दैट इज इनिशियल. आपको पूरा लिखना है प्रॉपर, ठीक है, यू हैव टू राइट प्रॉपर नाउन. सेकेंड इज मफिन. इट कुड बी एनी, राइट, एनी फ्लेवर ऑफ मफिन, सो दिस इज कॉमन नाउन. बी हाइव, this is also common noun, right. Then Easter. Easter is a festival which is celebrated before, I think it is celebrated in March. Okay, the Christians celebrate this festival. Okay, so ये हमारा proper noun है. उसके बाद है library. It can be many, right, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, so this is again common noun. Shop, that is also common. Harry Potter, that is name of a person, right, so it is proper noun. June. June is also a specific name of the month, so that is again proper. Donald, that is also a name of person, so that is proper. And last one is market. Market could be any of them, right, so this is used for in general or in common, so ये है common noun. Okay, now let's move on to the next exercise. Here we need to circle the proper nouns and underline the common nouns. So you need to remember, जो proper noun है उसके ऊपर हमें circle करना है और जो common noun है उसके लिए underline करना है. ठीक है. So let's see the exercise. Okay, now let's see exercise B. Circle the proper noun and underline the common noun. जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था. Let's see the first sentence. My cousin gave me the book The Three Musketeers. My cousin gave me the book Three Musketeers. So here students, पहला है cousin, right? Cousin means a brother or a sister, जो हमें नहीं मालूम है, right, कि ये कौन से brother और sister के बारे में बात कर रहे हैं. So it's a general word used for brother and sister. तो cousin जो है वो हमारा common noun है, इसलिए हमने underline किया. उसके बाद है book. Book is also again कॉमन नाउन बिकॉज इट कुड बी एनी, और उस बुक का स्पेसिफिक नाम भी दिया हुआ है, द थ्री मस्केटियर्स.
सो थ्री मस्केटियर्स को हमको सर्कल करना है बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ द सेकेंड वन, Nisha and Beena are sisters. So Nisha is a proper noun because it's a name given to a girl, and Beena, that is also a proper noun, है ना, स्पेसिफिक नाम है लड़की का. एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स जो है वो कॉमन नाउन है ना. इट कुड बी एनी, जैसे कि यहाँ पे दो सिस्टर्स है, उनका नाम दिया हुआ है. सो सिस्टर इज कॉमन नाउन एंड नीशा एंड बीना आर प्रॉपर नाउन. द थर्ड वन, Bruno is a small dog but he likes to fight with big dogs. So here dog का specific नाम है पहला Bruno, so that is proper. फिर dog है, it's a name of an animal and it's a common name, so we are going to underline it because it is a common noun. और ये वापस dogs आया, so that is also a common noun, right? Now let's see fourth one. Sheba likes to wear dresses but Shruti likes to wear saris. So here students, we have the name of two girls and we also have the name of two things, right? Can you tell me what are the two things given over here? Yes, we have saris and dresses. अभी उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाउन या नेम नहीं यूज़ किया है, इसीलिए ड्रेसेस एंड साड़ीज़ जो है वो है हमारे कॉमन नाउन. और शीबा and Shruti, that is a specific name of the lady or a girl. That's why Sheba and Shruti are proper noun. Okay. Next one, the Mona Lisa is a famous painting. The Mona Lisa is a famous painting. So ये specific नाम है एक painting का, इसीलिए this is a proper noun. And if you are talking about different paintings, right? So that would be in general and that's why painting comes under the category of common noun. Sixth one, Ramdini is my neighbor. Neighbor could be any, right? आपके भी बहुत सारे neighbors होंगे, right? So neighbor जो है वो हमारा common noun है because it is used in general for anyone. लेकिन हम specify कर रहे हैं यहाँ पे कि Ramdini is my neighbor. So we are giving name. So that is our proper noun. Seventh one, Dayaram and Sukhi are clever carpenters. So what are Dayaram and Sukhi? Carpenters. Carpenters could be any. So ये हमारा common noun है जो हम general में use करते हैं. और यहाँ पे ये जो दो नाम दिए हुए specific person के जो specific नाम है दयाराम and Sukhi, those are special names you can say or specific name, इसीलिए ये हमारा proper noun है. Next one, New Delhi is the capital of our country. Here New Delhi, that is a name of a city, right? So New Delhi is a name of a city, so that is a proper noun. Is the capital of our country. Capital means the capital city of our country. So यहाँ पे capital जो है उसको हम underline करेंगे, right? Because हर state का अलग अलग capital होता है, right? So capital is used in general. उसका मतलब होता है capital city of that specific state, right? So capital जो है वो हमारा general use के लिए है, that means it's a common noun. और न्यू दिल्ली जो है वो है हमारा proper noun, right? Because it is the capital of our country. यहाँ पे अगर country की जगह पर इंडिया लिखा होता तो वो प्रॉपर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंट्री लिखा है, जो हम जनरली किसी भी कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, इसीलिए कंट्री जो है वो कॉमन नाउन में आएगा. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ ऑल्सो लास्ट वन, सुनीता प्लेज द पियानो एंड सुनिधि इज़ अ सिंगर. सो हियर there are two musical instruments given over, one is a musical instrument, right, that is piano. It's a common noun, है ना. And Sunita and Sunidhi, those two are specific name of the person, so those are proper noun. और singer जो है, singer कोई भी हो सकता है ना, we can use in general for anybody. So singer is again a common noun. So students, I hope कि आपको common और proper noun समझ में आ गया है, right? Common noun means जो
नाउन हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. But when we give a special name to a person, place, animal or thing, then it is called proper noun. Okay? So students, I hope you are clear till here. We would be continuing with abstract noun in the next class. If you have any doubt, you can ask me in the live class. Okay? Thank you.